Good morning, all of you. Welcome to today Visual Basic for Applications Visual Classes. आज का विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का क्लास में मैं सभी को स्वागत कर रहा हूं। Once again, as usually, I thankful to my DGT, all the staff members, especially for IT cell. They are providing this type of virtual classes arrangements to conduct online classes. At the same time, I also thankful to the NIMI staff members, Director Dingra sir, as well, and in backend, some of the technical officers also supported working to success this virtual classes. As well as I thankful to all my NST HODs, principals, and staff members who are shared my meeting schedule into their individual trainees groups. And also thankful to my NST Noida, HOD Swati madam, as well as principal madam, Shashi Mathur madam, and all my staff members. They are providing their technical support to me. And also thankful to V. Babu sir Indore, Raju Kannam sir Bangalore, Bannabhai sir Hyderabad, Rinku madam Jaipur, Tulika madam Panipat, Sanjay sir Vadodara, Hemlata madam Indore, Jyoti Ballari madam Mumbai, and Sam Sivara sir Mumbai, Sarika madam Allahabad, and Sulpa madam Trivandrum, Niyogi sir Kolkata, and Gaurav sir Tura. And also my special thanks to my trainees, students who are joined for today my VBA online virtual classes. My name is B.A. Gurugulu, vocational instructor. Mobile number is 9015983271. Email ID is gurunvt@gmail.com. This class was lectured from delivered from NST Noida, National Skill Training List for Women Noida, through Zoom, NIMI Zoom app. So friends, in last two classes we have discussed about the decision maker if statement. पिछले दो क्लास में से हम डेली बातचीत कर रहे हैं if स्टेटमेंट यानी डिसीजन मेकर के बारे में। if स्टेटमेंट को दूसरे शब्दों में डिसीजन मेकर कह लेते हैं। कोडिंग के अंदर एक कंडीशन चेक करने के बाद कंडीशन के अनुसार अगर आप एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है तो एक टास्क को फुलफिल करना है, तब हम हमारा कोडिंग के अंदर ये विथ स्टेटमेंट का सहायता से हम फुलफिल कर सकते हैं। By using this if statement, if you want to implement a task based on the condition, whether if it is a condition is true, then if you want to do a particular task, or condition is false, or you want to do some another task, or if sometimes you are checking more than one status, so that is also possible by using this if statement through ladder or nested if. कई बार कई संदर्भ में क्या है, एक से अधिक स्टेटस को भी ही हम चेक करके फिर अलग अलग टास्क को करना पड़ता है थ्रू प्रोग्रामिंग द्वारा। तो इसीलिए उस समय क्या कर सकते हैं, इसी इफ स्टेटमेंट यानी डिसीजन मेकर का साथ हम वो भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम हम नेस्टेड इफ या नहीं लैडर इफ का फंडा इंप्लीमेंट। So there are three ways are there to implement the if statement. So one is only if condition is true, then it can do a particular task. If condition is false, then controller will pass on to the end if statement. Right? सेंटेंस को पढ़ के स्किप इग्नोर करके फिर एंड इफ का आगे जो भी लिखते हैं हम उसको इंप्लीमेंट करें। दूसरी तरीका ये है इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट्स, एल्स कंडीशन देन एंड इफ। So friends, what I'm telling here, there are second ways there to implement the if condition or decision maker with else statement. If condition, then you can mention the number of statements, else then mention the number of statement, and if the condition is true, then the controller will enter into the if block and it will type the execute line by line from in between if and else block. If the otherwise means if condition is false,
then the controller will find out where the else statement, if the else statement or else portion is available, find the else statement, then controller will automatically enter into the else block and it will try to implement or execute all the statements which are written between else and if. कंडीशन गलत होने के समय पर else ब्लॉक के अंदर प्रवेश करके अपना आप फिर else और एंड इफ के बीच में जितना भी हमने स्टेटमेंट्स लिखा है वो सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तीसरी लॉजिकल स्ट्रक्चर है, कंडीशन सही है तो ट्रू ब्लॉक के अंदर प्रवेश करके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद एंड इफ, और कंडीशन गलत है तो फॉल्स है तो फिर एल्स ब्लॉक के अंदर प्रवेश करके फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके फिर एंड इफ के आगे कुछ स्टेटमेंट्स भी हो सकता है या तो प्रोग्राम भी समाप्त हो सकता है। तीसरी तरीका ये है नेस्टेड इफ लैडर इफ स्टेटमेंट। इफ कंडीशन 1 देन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, देन कंडीशन 2 दूसरे कंडीशन चेक करने के लिए एल्स इफ, कंडीशन 2 देन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, एल्स इफ कंडीशन 3, इस तरह एन कंडीशंस तक का हम लिख सकते हैं। सबसे आखिर में एल्स पोर्शन इसे लिखते हैं दिया गया सारे कंडीशंस फेल गलत है तो एल्स के अंदर प्रवेश करके एक टास्क को फुलफिल करने कैन इंप्लीमेंट इफ नेस्टेड इफ और लैडर इफ इन अनदर वे, थर्ड वे, that is called as if condition, number of statements, then after that else if, then condition, then number of statements, then after that else if, condition, then number of statements, in the last else portion, that is called as default. They have given above conditions all are fail, then controller will automatically enter into the else block and it will try to complete the execution in between else and end if state block. ये else default option है, कई बार optional भी है, that is depending upon the programmer and the task. प्रोग्राम का अनुसार टास्क का अनुसार else को implement कर सकते। ये चीज हमने डिस्कस किया है। These things already were discussed from the last 2 classes onwards, but as a teacher, that is my means responsible to give the recap. टीचर होने के बावजूद मैं एक रिकैप देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को पुराना क्लास का बारे में याद दिलाने के लिए। रिकैप इट विल हेल्प टू द कंटिन्यूटी between the previous class to current class. ये रिकैप यही मदद करते हैं पुराना क्लास और आज का क्लास के बीच में जो संबंध रिलेशनशिप प्रोवाइड करने, कंटिन्यूटी। हमने ये भी डिस्कस किया कल का क्लास में सेलेक्ट केस स्टेटमेंट नाम से एक अनदर कॉन्सेप्ट VBA के अंदर। अनदर वे टू इंप्लीमेंट द डिसीजन मेकर इन VBA कोडिंग इज यूज्ड टू सेलेक्ट एंड केस स्टेटमेंट। देखिए अगर इफ एंड एल्स इफ नेस्टेड इफ else if इसलिए यूज करते हैं हम if you want to check another condition। VBA कोडिंग के अंदर हम ये else if को किस लिए संभालते हैं, अगर आप और एक कंडीशन को चेक करना चाहते हैं तो else if का आगे कंडीशन लिख के देन लास्ट में एक ही एंड इफ लिखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है if you want to make some complement means more than one condition compound statement condition, then user or programmer will make some confusion, it will create some difficult or inconvenient। कई बार क्या है एक से अधिक कंडीशंस मल्टीपल कंपाउंड कंडीशंस को अप्लाई करते समय पर ऑपरेटर को या तो प्रोग्रामर को तकलीफ हो सकता है, आसान से अप्लाई नहीं कर सकते हैं वो। तो उस समस्या को दूर करने के लिए उसी लैडर इफ या नेस्टेड इफ को आसान तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए बाद में सेलेक्ट केस नाम से दूसरा फंडा को परिचय किया। So there are 2 ways to implement the select case means statement in VBA coding. First one is select case, then expression. You can give the expression. Then depending upon the expression, you can implement the number of cases. Case is condition 1, then statements. Case is condition 2, like that. Case is condition 3. Case last one by default case else, then number of statements and end select. End select statement will indicate the end of the select case statement. देखिए आज के क्लास में हम दोबारा के सेलेक्ट और केस स्टेटमेंट के बारे में समझा रहा हूं मैं। 2 अलग अलग तरीके से हम सेलेक्ट केस स्टेटमेंट को VBA कोडिंग के अंदर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो पहली तरीके ये है सेलेक्ट केस ब्रैकेट का अंदर एक्सप्रेशन लिखने के बाद केस इज कंडीशन द नंबर ऑफ स्टेटमेंट, अगेन सेकंड कंडीशन के लिए केस इज कंडीशन 2, इस तरह नंबर ऑफ कंडीशंस को हम लिखने के बाद आखिरी में सबसे आखिरी में केस एल्स नाम से एक ऑप्शन है। तो ये क्या करेगा, अगर दिया गया सारे कंडीशंस ऊपर लिखा गया दिया गया सारे कंडीशंस गलत है तो तब भी और एक काम करना चाहते हैं तो एल्स केस एल्स ऑप्शन का सहायता से हम इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए केस एल्स एंड एंड सेलेक्ट फॉर ऑल द केस कंडीशंस आर फेल, then controller will automatically enter into the case else block and it will try to implement the given statements line by line
then after reaching the end select statement, if any further statements are there, then it will continue to execute that statement. ये गया सारे कंडीशंस फेल होने के बाद कंट्रोलर अपना आप केस एल्स ब्लॉक का अंदर प्रवेश करके जितना भी लाइन सामने लिखा है उसको एग्जीक्यूट करके फिर एंड सेलेक्ट का आगे जो भी है वो इंप्लीमेंट करेगा। अब दूसरी तरीका है आसान तरीका, सेलेक्ट केस ब्रैकेट्स में n मींस ऑप्शन नंबर, यू कैन गिव एनी नंबर 1 2 3 4 5 लाइक दैट। सो हियर केस 1, अगर पहली केस, अगर ऑप्शन यूजर ने पहली केस को सेलेक्ट किया है, सो क्या करना है वो बात केस 1 का लिखते हैं हम केस 1 का अंदर। फिर अगर मान लीजिए सेकंड ऑप्शन तो केस 2, देन फिर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, देन आफ्टर दैट केस 3 लाइक दैट। सेम वे केस एल्स की जगह पर इधर भी केस एल्स लिखेंगे हम, तो लास्ट में एंड सेलेक्ट, ये रही एंड सेलेक्ट। So you're already implemented in last class, but simply when a student want to find to know if I am select a trade, then what are the subjects are available. कल का क्लास में हमने ये देखा है केस सेलेक्ट केस का सहायता से अगर एक स्टूडेंट ने अपना नाम डाल के सपोज कोपा में सेलेक्ट एडमिशन लेना चाहता हूं तो क्या क्या सब्जेक्ट्स है, पीटीपी में तो क्या क्या सब्जेक्ट्स है, आईबीएम में तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, अगर इन तीनों के अलावा कुछ और सेलेक्ट किया तो फिर क्या हो सकते हैं। ये चीज हम कल का क्लास में डिस्कस किया है। 1 2 3 4 5 ये बहुत आसान है। अगर किसी स्टूडेंट के अंदर कोई डाउट है, सर जी आपने आसान तरीका बताया है, थोड़ा बहुत कठिन तरीका आपने छोड़ दिया है, तो सेलेक्ट केस एक्सप्रेशन इसके लिए भी एक उदाहरण बता दीजिए ताकि हम समझ सकते हैं। If anybody having such type of doubt means, sir, you are explained through an easiest manner, simply case 1, case 2, case 3. But how to implement these select case by using expression? So today I want to implement these the select case statement by using expression options. After finishing this example, I will enter into the looping concept. आज के क्लास में दोबारा ये सेलेक्ट केस ऑप्शन यानी स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन द्वारा कोडिंग इंप्लीमेंट करने के बाद लूप के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। अभी मैं वीबीए प्रोग्रामिंग के अंदर प्रवेश कर, मैं दोबारा इस लास्ट बात कॉन्सेप्ट को आसान से समझाना चाहता हूं। फ्रेंड्स प्लीज कृपया ध्यान दीजिए, आज के क्लास में सेलेक्ट केस स्टेटमेंट के बारे में मतलब दूसरी तरीका एक्सप्रेशन द्वारा कंडीशन द्वारा कैसे हम इस सेलेक्ट केस स्टेटमेंट को वीबीए के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में हम प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे। फ्रेंड्स प्लीज कंसंट्रेट, टुडे इन आवर वीबीए लाइव क्लास वी विल डिस्कस, वी विल इंप्लीमेंट द कोडिंग द सेम सेलेक्ट केस स्टेटमेंट through an expression condition. Okay, I hope you people sir understand today the given recap. मैं आशा रखता हूँ अभी तक जो भी मैंने बताया है रिकैप किया है तो वो चीज सभी को समझ में आया होगा। We will enter into the practical section. अभी हम VBA प्रैक्टिकल कोडिंग सेक्शन में जा रहे हैं हम, ताकि जो दूसरी तरीका सेकंड प्रोसीजर टू इंप्लीमेंट सेलेक्ट केस थ्रू एक्सप्रेशन। okay. हाँ न्यू शेयर look at here, this is the last class coding VBA द्वारा हमने क्या किया, एक स्टूडेंट का नाम पूछने के बाद फिर उसका नेम ट्रेड पूछने के बाद सब्जेक्ट डिस्प्ले करते थे। ठीक है, इसी को फिर दोबारा रन करना है तो मैं रन करके दिखाता हूँ, एक मिनट। और टाइम इज डेवलपर, नाउ इट इज इन कमेंटिंग मोड। इफ यू आर क्लिक्ड हियर डिजाइन मोड देन ओनली एडिटिंग। सपोज आई वांट टू रन दिस वन, click on this one, enter your name, Anika Chaudhary. Suppose 1. You can run this coding number of times. I want to go to the coding design mode, double click. This is the first dim sname trade. मैंने दो वेरिएबल्स को काम में लिया। I will define two variables, sname and trade. Both are string type. One sname is used to store the student name. Then second one trade is used to store the trade. Then second line, I want to store three subjects names: subject 1, subject 2, subject 3. So due to that reason, dim subject 1, 2, 3 as string.
Windows, like PageMaker, whatever it may be. These are all string data types. Due to that reason I was mentioning. Then dim OPT as integer operator, sorry option. So यूजर से हम इनपुट मांगेंगे कौन सी ट्रेड में ज्वाइन मतलब सब्जेक्ट जानना चाहते हैं, कोपा में, डीटीपी में, 1 है तो कोपा, 2 है तो डीटीपी, 3 है एडवांस डिप्लोमा। देन सेलेक्ट केस विद इन द ब्रैकेट ऑप्शन, जो इनपुट हम दे रहे हैं 1 2 3 वो ऑप्शन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ताकि कीबोर्ड से हम वेरिएबल्स को रीड करने के लिए इनपुट बॉक्स कमेंट संभालते सबको पता है, एक लाइन से दूसरा लाइन पर जाने के लिए वीबी न्यू लाइन, फिर फर्स्ट सेलेक्ट योर चॉइस डिस्प्ले करेगा, फिर सेकंड लाइन में 1 कोपा, थर्ड लाइन में डीटीपी, फोर्थ लाइन में 3 एडवांस डिप्लोमा, देन फिफ्थ लाइन में 4 एग्जिट। तो फ्रेंड्स हियर केस सेलेक्ट 1 से 1 है तो कोपा यू आर सेलेक्टेड, देन सब्जेक्ट्स, 2 है तो डीटीपी सब्जेक्ट्स, इस तरह हमने इंप्लीमेंट किया। अगर 3 का अलावा 4 5 6 जो भी दिया तो 3 कंडीशंस फेल है, ऑटोमेटिकली केस एल्स के अंदर प्रवेश करेगा, यू आर नॉट सेलेक्टेड एनी ट्रेड, सो ब्लैंक सब्जेक्ट्स डिस्प्ले करेगा। ये है आउटपुट के लिए हमने लिखा रेंज b4.m, यानी एक्सेल शीट b4 का अंदर सेल में स्टूडेंट नेम लिखना चाहते हैं हम, b5 सेल का अंदर ट्रेड लिखना चाहते हैं हम, जो सब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 6 7 में। So friends, now we will implement the last class means so gradings, because as a trainee means students we are easy to understand this means students concept as a trainee, as a student। तो इसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड को फिर केस सेलेक्ट केस ऑप्शन का साथ इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। व्हाई आई एम यूजिंग द प्रीवियस प्रोग्राम्स मींस आई वांट टू सेव द टाइम। अभी मेरे पास सिर्फ 1 ही घंटा टाइम है, इसलिए सारे प्रोग्राम दोबारा लिखेंगे तो क्या होगा, टाइम किलिंग। सो ड्यू टू दैट रीजन आई वांट टू यूज द माय प्रीवियस प्रोग्राम, देन थ्रू दैट प्रोग्राम आई कैन इंप्लीमेंट और एनहांस द नेक्स्ट मींस लेटेस्ट कांसेप्ट। तो ये प्रोग्राम सबको पता है स्टूडेंट्स, मार्क्स शीट्स के बारे में क्या है, नैम इंग्लिश 5 सब्जेक्ट्स रीड करेंगे टोटल करके, फिर परसेंटेज डिवीजन, साथ साथ इसमें हमने ये लिखा है अगर मैथ्स में 35 का कम आ गया तो 10 मार्क्स बोनस ऐड करने के लिए, केवल इफ एंड इफ। फिर टोटल ग्रेड से हमने कोडिंग लिखा है। अब मैं सेलेक्ट केस का साथ इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स प्लीज लुक एट योर, कृपया ध्यान दीजिए, आज का क्लास में जो डिवीजन है दोबारा सेलेक्ट केस ऑप्शन द्वारा मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ थ्रू एक्सप्रेशन। सो इसके लिए क्या किया मैंने, डेवलपर पर गया, फिर डेवलपर के नीचे जो विजुअल मेनू बेसिक का जो मेनू पैड्स है इसका अंदर इंसर्ट, and second option ActiveX control, then I clicked the button and after that place button in my Excel sheet and dragged it, it will appear like this, and double click it and go to the properties caption, you simply change the caption select case for our convenient only, then you can change the font size, a different font, we know very well about these things, bold some font is okay, then I will go to here, so there is no need to written entire the same program, दोबारा हम पुराना प्रोग्राम को लिखने की जरूरत नहीं। as a IT person we know very well about the copy and paste, so due to that reason nested if the first concept is first time you are using first division second third like that, so इसी कोडिंग को I want to copy the same coding into my button like this। मैं यही प्रोग्राम को सेलेक्ट केस के द्वारा इंप्लीमेंट करने के लिए सेलेक्ट केस बटन पर डबल क्लिक किया है, पेस्ट कर लिया। फिर इसमें दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नेम एसनेम स्टूडेंट नेम डिवीजन दोनों स्ट्रिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो स्ट्रिंग डाटा है इसलिए वो भी स्ट्रिंग वेरिएबल मानता मैं, तो इसलिए एसनेम स्टूडेंट नेम एंड डिवीजन दोनों स्ट्रिंग होने के कारण से डिम एसनेम कॉमा डिव एज ए स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। फिर 5 स्टूडेंट्स के लिए 5 सब्जेक्ट्स मान के चला मैंने, इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस एसएसटी, देन टोटल मार्क्स परसेंटेज सारे न्यूमेरिकल डाटा है एज ए इंटीजर। देन आफ्टर दैट एस नेम इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स में कीबोर्ड से रैंडमली अलग अलग स्टूडेंट नेम रीड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या है, इनपुट बॉक्स के लिए लेफ्ट साइड वेरिएबल नेम लिखना है इज इक्वल आगे इनपुट बॉक्स विद इन द ब्रैकेट में क्या है जो भी प्रॉम्प्ट टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। If you want to read a variable random variable value randomly through keyboard, then that time you can use the input box। कीबोर्ड से अलग अलग वैल्यूज रैंडम वैल्यूज को रीड करने के लिए इनपुट बॉक्स कमांड को संभालते हैं हम। इनपुट बॉक्स सिंटेक्स में लेफ्ट साइड वेरिएबल नाम लिखते हैं, फिर आगे इज इक्वल लेफ्ट मोस्ट, देन इज इक्वल आगे राइट साइड इनपुट बॉक्स ब्रैकेट में कोटेशन जो भी आपको एंटर द स्टूडेंट नेम। इसी तरह 5 इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस एसएसटी मार्क्स रीड कर रहे हैं हम। फिर रीड करने के बाद फिर
अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स का 35 से कम आ गया तो फिर 10 मार्क्स सबसे पहले बोनस मार्क्स हम जोड़ के फिर नया मैथ मार्क्स उसी मैथ के अंदर स्टोर कर रहे हैं। केवल मैथ मार्क्स 35 से कम आ गए तो तब ये इंप्लीमेंट करेगा। if the particular student got only in the mathematics subjects below 35 marks, then only the math marks will be added 10 marks extra. If the given mathematics marks is more than 35 or equal 35, then this condition is failed. Due to that reason, as easily the same marks will be considered as a mathematics final marks. Then after that we are taking calculated here the total marks. Then value function, it can returns the numeric value of the given student. So English, Hindi, Math, Science and SST total किया हमने, फिर percentage is equal to total marks by 5 and percentage is means greater than or is equal to 60, that is equal to first division. इसको हम क्या करेंगे अभी, select case. Please look at here. आप अब कृपया ध्यान दीजिए, select, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया select case, then within the bracket तो जो हम परसेंटेज TERC वही एक्सप्रेशन हमारा, देन केस इज परसेंटेज कितना है सेम वही लिखिए, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 60, बस ये हटा देते हैं, डिवीजन फर्स्ट, देन व्हाट हैपेंड, केस इज परसेंटेज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 45। आपको ये डाउट आ सकता है सर जी अगर एक स्टूडेंट्स का मार्क्स 70 है 80 है तो तब भी ये केस तो फुलफिल कर रहा है, 70 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45। हाँ ये तो ट्रू है, लेकिन इस केस पर कब आएंगे, ऊपर वाली केस फेल है तो तब नीचे, when the controller will reach to the second stage if the first status is not fulfilled, not meet the condition, अगर ये condition first condition is fail then only it will enter into the second condition। अगर कंट्रोलर सेकंड कंडीशन तक आ गए तो इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली जो कंडीशन है फेल है, यही मान के चलते हैं। इसलिए केस इज ग्रेटर देन 45, देन व्हाट हैपेंड, डिवीजन इज इक्वल टू सेकंड, देन इफ केस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 मींस 35 से ज्यादा है या बराबर, देन मींस परसेंटेज डिवीजन इज इक्वल टू थर्ड, एल्स मींस ना 60 से ज्यादा नहीं, ना 45 से ज्यादा नहीं है, ना 35 से भी ज्यादा नहीं है, मतलब below 35 34 0 से लेकर 35, else division fail। the same thing we are printed here। so now friends my coding is ready, मेरा प्रोग्राम तैयार है, I want to check implementation whether it gives the correct answer or not। मैं भी इसको रन करके चेक करना चाहता हूँ ये सही उत्तर दे रहा है नहीं, आंसर दे रहा नहीं। तो फिर चलो एक्सेल शीट पर गए मैं, ये है मेरा सेलेक्ट केस ऑप्शन, फिर एडिटिंग मोड को मैं स्विच कर रहा हूँ, मैं इंटरेक्टिव मोड एग्जीक्यूशन मोड में लेकर आया मैं, फिर अभी थोड़ी मिस्टेक, एल्स सॉरी एल्स तो होता है नहीं इसमें, केस एल्स देन इसको भी चेंज करना पड़ेगा एंड सेलेक्ट, जल्दीबाजी में हमने चेंज नहीं, सॉरी। सो फ्रेंड्स हियर नाउ enter the student name, Anuradha, English marks 60, Hindi some 70, mathematics 34, science 50, SST some 80। Look at here, 34 means below 35, condition is fulfilled, then it can add 10 marks, 34 plus 10 44, remaining as it is, then total percentage 61 was given the first division। don't make any confuse please, तो थोड़ा देर के लिए मैं दूर रख रहा हूँ, I want to move here to avoid the confusion। now I am implementing the same coding through select case with expressions condition का साथ, डिजाइन चेंज कर रहा हूं मैं, तो दोबारा रन कर रहा हूं मैं, enter the student name, चंदू,
suppose I want to check fail status 34, 30, 15. You can give any random numbers. Student name is Chandu, English 30, Hindi 34, Maths 25. Condition is originally we are given 15. Condition is fulfilled, so 25. Then after adding 10, मतलब 35 से कम में है तो इसलिए 10 जोड़ दिए इन्होंने तो 25 आ गया. फिर जो ये ओरिजिनल्स टोटल 144, 30%. So below 35, fail. We will check. First division already checked, failed. We already checked. The second division means 45% to below 60. Okay. Nurani. Then enter the English marks. 46. Hindi 50. Mathematics suppose has scored more than 35 means. Suppose 45 or 50. Science 48. SST 47. Look at here, 50 is not below the means less than 35. 50 35 से कम नहीं बराबर नहीं है तो ये कंडीशन फेल हो गया इफ कंडीशन. इसलिए 10 मार्क्स जोड़ा नहीं, एज इजली मैथ के अंदर 50 को रखा है. लेकिन इंग्लिश 50, 46, 48, 47 टोटल किया इन्होंने, फिर बाई 5 से डिवाइड करने के बाद 48, तो सेकंड डिविजन. वी आर इंप्लीमेंटिंग दिस थिंग्स थ्रू सेलेक्ट केस. रिमेंबर प्लीज दैट. फर्स्ट डिवीजन देखा हमने, सेकंड देखा है, फेल भी देखा है. अगर थर्ड डिवीजन की बात है, if you suppose if you are considered the third division, then you please remember 35% to 45% means 35, 36 up to 44. Can enter any name. Anchal Kumar. 35 to 45, 44 range. Okay. Third division. So 37, 38, mathematics 28, then after that science 40, SST Anchal Kumari, English 38, Hindi 37, mathematics suppose if you are given 28, condition is fulfilled because below 35. ये कंडीशन पूरा हो रहा है इफ कंडीशन. मैथ्स मार्क्स 35 से कम है इसलिए 10 जोड़ दिए इन्होंने. फिर साइंस 40, एसएसटी 46, टोटल मार्क्स 199, then percentage 40. I check all these means categories first, second, third and fail by using select case option. Sorry, there is no need to run again. Once again, it will take time. मैं आशा रखता हूँ आप लोगों का समझ में आया होगा. I trusted you people sir understand. This is the program. ये तो पुराना प्रोग्राम है चीजली. अब हमने क्या किया, इतना तक कैलकुलेशंस तो किया. Select case percentage, क्योंकि why? Because the division will be depending upon the percentage only. डिवीजन की बात है, डिवीजन को कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज का अनुसार हम डिवीजन बताते हैं. 60 से ऊपर है तो फर्स्ट, या 45 से ऊपर 60 से कम है तो सेकंड, 35 से ज्यादा 45 से कम है तो थर्ड, अगर 35 से भी कम है तो फेल. तो ये है परसेंटेज का अनुसार. तो परसेंटेज हमने कैलकुलेट किया. लास्ट टाइम इफ कंडीशन लिखा हमने तो इसकी जगह पर सेलेक्ट केस परसेंटेज लिखा. ये एक्सप्रेशन हो गया. Case is greater than or is equal to 60 and division first. Case is greater than or is equal to 45, division second. Then case is 35 greater than or is equal to, then the third. Case else last one means ये default सारे cases fail है तो means condition fail है तो division fail लिखेगा. ये है output. तो मैं आप लोगों का कन्वीनियंट के लिए सबसे पहले ही कर रहा हूं मैं
एक्सेल शीट पर लेकर आ रहा हूँ, अगर छोटा अक्षरों में आपको दिखाई नहीं दे रहे तो फिर मैं शो करना चाहता हूँ, प्लीज यू मेक इट स्क्रीनशॉट और वट एवर इट मे बी, फोटोज। बड़ा बड़ा अक्षर में तो जरूरत है। ये मैं लास्ट क्लास में भी बताया है आपको। क्या है, सपोज देखिए, आज समय है, मैं बता रहा हूँ, ये तो बटन वाली है। प्राइवेट सब कमांड मीन्स वी आर इंप्लीमेंटिंग थ्रू कमांड बटन इवेंट, ये है। साथ साथ ये भी लिख रहा हूँ, ये क्या है इसका मतलब बताने के लिए फ्रेंड्स, प्लीज try to understand the concept. The dim and this dim to a declaration of variable creation, VARA और डिक्लेरेशन। वेरिएबल को काम में लेने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। देन दिस इज द रीडिंग, डाटा रीडिंग। थ्रू कीबोर्ड, क्योंकि कैलकुलेशंस वगैरह जो भी करना है, फर्स्ट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, डाटा को रीड करना है। डाटा पता होने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं इधर, इसमें स्टेज में क्या कर रहे हैं हम, केवल इफ कंडीशन सही है तो क्या करना है, ओनली इफ एंड इफ, ये इंप्लीमेंट किया। कंडीशन सही है तो मैथ्स जोड़ेगा 10 मार्क्स, मींस बिलो 35, नहीं तो फिर स्किप करके आ गया। ये है कैलकुलेशन तो करना। अब इस व्हाट डू वांट मींस योर टास्क, कैलकुलेशंस मींस इंप्लीमेंट योर टास्क। देन एंटर दिस वन, केवल इतना नहीं है, इन सभी के लिए कैलकुलेशंस किया हमने, फिर बाद में क्या किया, चेक किया है। इफ का जगह पर सेलेक्ट केस हमने, जो इंप्लीमेंटेशन, ये कोडिंग टास्क इंप्लीमेंटेशन, ये कैलकुलेशंस पार्ट हो गया है। ठीक है, फिर फ्रेंड्स ये है इतना तक। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, परसेंटेज कैलकुलेट किया हमने, परसेंटेज का अनुसार बताना है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन है, फेल। व्हाट इज आवर मेन एम थ्रू दिस कोडिंग, वी वांट टू डिटरमाइन whether that particular student got first division or second division, third division or fail. That is the main motto, main aim. So due to that reason, this one is the implementation. Then after that, result, ये printing. So this is the result printing, means range comments से हमने Excel sheet पर print किया है, end of the program coding. मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, प्लीज मेक इट स्क्रीनशॉट और फोटो कॉपी, व्हाटएवर इट मे बी। ये है स्टार्टिंग, थ्रू हमने क्या कर रहे हैं, बटन द्वारा हम इंप्लीमेंट कोड स्टार्टिंग। जब आप डबल बटन पर डबल क्लिक किएंगे तो ऑटोमेटिकली आएगा प्राइवेट सब कमेंट बटन, व्हाटएवर इट मे बी। इंडिविजुअली लिखने के लिए सब प्रोसीजर SUB देन XYZ, so we are implementing through button. So here friends, please look at here. So name statement is used to create the variables. So variable creation हो गया है, डाटा टाइप वगैरह हमने बताया, फिर डाटा रीडिंग ये है, then after that only if and implementation, then ये calculation part, then after that implementation means determining the division, division पता कर रहे हैं हम, फिर सारे काम कंप्लीट होने के बाद उसी को हम रिजल्ट्स स्क्रीन पर आउटपुट बता रहे हैं, ये है रेंज का। दिस वन वाज इंप्लीमेंटेड थ्रू दी, कैसे इंप्लीमेंट किया हमने, सेलेक्ट केस,
नहीं क्या किया, सेलेक्ट स्टेटमेंट्स केस द्वारा टास्क को हमने पहले if and else if, nested if, ladder if, the same concept we are implementing through this select case statement. Okay, so I think if people are understand very well, then मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ. I will continue to the further next topic, next section. So friends, here we want to discuss looping concept. Ini pernah cuci looping concept baca di screen ada? Huh? So now please, friends, look at here. We will enter into the new concept, loops, in every language, like C, C++, Pascal, COBOL, whatever it may be, Java. Loops concepts are there. Looping is one of the powerful programming technique. ये प्रोग्रामर के लिए लूप एक यूजफुल एंड पावरफुल टेक्निक मीन्स लूप से हम क्या कर सकते हैं, एक कोड को बार बार लिखने के वजह से, मतलब इफ यू वांट टू प्रिंट योर नेम 100 times, you can apply the range 100 times. So it will time taken, memory loss. The same thing you can implement by using this looping concept within 1 or 2 lines. A loop in Excel VBA enables you to loop repeat through a range of cells with just a few code lines. VBA के अंदर looping क्या करेगा, Excel sheets के अंदर एक range of cells के लिए जो भी टास्क बार बार आप टोटलिंग करना है, नंबर्स को प्रिंट करना है, स्टूडेंट्स का वो एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स का मार्क्स रीडिंग करना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट, और if you want to generate in a company or factory employee salaries at the end of the month, 50 employees, 500 employees or 1000 employees, the number is not depending upon the here, the concept is only loop. तो इस लूप का सहायता से क्या कर सकते हैं हम, एक कंपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री के अंदर 550 है तो हजारों लोगों का एम्प्लॉइज का सैलरीज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर जनरेट करने के लिए। नहीं तो एक स्कूल्स कॉलेजेस में क्या, एक सेक्शन में एक एग्जाम, टीचर एक एग्जाम कंडक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स का 60 स्टूडेंट्स का मार्क्स रीड करना है, तो ये लूप का सहायता से 2-3 लाइंस कोडिंग लिख के फिर जितना भी स्टूडेंट्स है उन सबका मार्क्स रीड करके फिर स्टोर कर सकते हैं बैक एंड में MS एक्सेल का। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द VBA। VBA का मुख्य फायदा क्या है, जो भी अपना डाटा है VBA के अंदर इन फ्यूचर हम डिस्कस करेंगे, एक सुंदर सुंदर फॉर्म्स क्रिएट करके फिर डाटा फॉर्म्स का द्वारा एंट्री करेंगे, बैक एंड में डाटा विल बी स्टोर्ड इनटू द MS एक्सेल। Again, data is available in the MS Excel sheet. We can fetch the data which is available in the MS Excel. Then it will display into the form or some other reports. Excel sheet पर पड़ा हुआ डाटा को हम get करके फिर फॉर्म को ऊपर भी लेकर आ सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। That is the main advantage of the VBA. We will discuss these things in future. ये सारे चीज हम अगले मीन्स मतलब भविष्य में हम देखेंगे 2-3 क्लासेस का बाद। So friends, there may be a situation when you need to execute a block of code several number of times. कई बार ऐसे होता है हमारा प्रोग्रामिंग के अंदर एक से अधिक स्टेटमेंट्स को बार बार करना पड़ता है। Sometimes we want to implement more than one line coding into number of times. एक से अधिक लाइंस को एक से अधिक बार इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उस काम के लिए लूपिंग। कई बार की यात्रा करने वाले क्या करता है, बाइक्स रेस वगैरह चलाने वाला गाड़ी है जो मेन रूट है, sometimes they are feeling as a traffic, heavy traffic, so that time they can take a shortcut loop time to cover their time. कई बार क्या करते हैं इंसान लोग यात्रा करते समय पर बाइक या तो गाड़ी से, अगर उनको पता है मेन सड़क से जाते समय पर, मेन रास्ते से जाते समय पर ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा, तो समय को बचाने के लिए क्या करते हैं लूप लाइन यानी शॉर्टकट रास्ता में चला जाता है।
तो उससे क्या हो सकता है, समय बचा सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स हियर इन जनरल statements are executed sequentially, but the first statement in a procedure oblique function is executed first, then followed by the second, then go on. Means अधिकतर क्या है, कोडिंग का अंदर फंक्शन हो, प्रोसीजर हो, या तो सिंपल प्रोग्राम है, सो प्रोग्राम रन करते समय पर क्या करेगा, कंपाइलर या इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। जैसे इफ ब्लॉक अंदर गया या केस ब्लॉक अंदर चले गए, फिर इस ब्लॉक अंदर प्रवेश करते समय पर क्या करेगा, फर्स्ट लाइन को इंप्लीमेंट करने के बाद सेकंड लाइन, देन थर्ड, एंड सो ऑन। So now, loop statements allows us to execute a statement or a group of statement implement times, multiple times. मतलब कि लूप स्टेटमेंट क्या कहते हैं, मैंने पहले समझाया, वे भी जस्ट एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, एक या तो एक से अधिक स्टेटमेंट्स को अधिक बार, मल्टीपल टाइम्स मींस मोर देन वन टाइम, अधिक बार मींस बार बार इंप्लीमेंट कर सकते। एवरी लूप स्टेटमेंट मस्ट हैव द फॉलोइंग 3 पैरामीटर्स। प्लीज कंसंट्रेट हियर, कृपया ध्यान दीजिए, अभी लूप्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, एवरी लूप हैविंग द फॉलोइंग 3 पैरामीटर्स। प्रति लूप का अंदर जो नीचे जो अभी बताया गया 3 पैरामीटर्स होता है, हमें लेते हैं, ये कंपलसरी है, इन तीनों का बारे में समझना जरूरी है। तो फ्रेंड्स हियर फर्स्ट वन इज इनिशियल वैल्यू। लूप के अंदर एक कंट्रोल वेरिएबल को हम काम में लेते हैं, सो कंट्रोल वेरिएबल का सहायता से लूप को हम कंट्रोल करते रहते हैं। क्या है सर जी, सपोज आपका लूप कौन सी वैल्यू से शुरू करना है, एट व्हाट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू, व्हिच वैल्यू आई वांट टू स्टार्ट माय लूप। लूप को ये बताना पड़ेगा आरंभ वैल्यू, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी वैल्यू से है मैं ये लूप शुरू करना है, इंप्लीमेंट करना है, दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल वैल्यू और स्टार्टिंग वैल्यू। लूप स्टार्टिंग वैल्यू बताना पड़ेगा। फिर कंडीशन, ये लूप कब तक चलेगा, नहीं तो कितने बार चलाना पड़ेगा, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट द एग्जीक्यूशन, दैट इज that one is treated as a condition. कंडीशन का मतलब क्या है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आसान तरीके से समझने के लिए कोशिश कीजिए। कंडीशन ये बताता है अपना लूप को, नहीं तो आप इस लूप को कब तक चलाना चाहते हो, कितना बार चलाना चाहते हो। इट कैन मेंशन हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रिपीट दिस लूप और अप टू व्हाट टाइम यू वांट टू इंप्लीमेंट दिस लूप, वो बात कंडीशन, दैट थिंग यू कैन मेंशन और कंट्रोल थ्रू द कंडीशन। फर्स्ट स्टार्टिंग वैल्यू, then condition, then after the third one is increment or decrement। इस लूप को नेक्स्ट आगे स्टेप क्या, पहली वैल्यू बताए अपने जो करना, तो मतलब स्टेटमेंट्स लिखेंगे कंडीशन चेक करने के बाद, फिर अगली इटरेशन मींस नेक्स्ट राउंड के लिए आपका जो कंट्रोलर वेरिएबल उसको बढ़ा सकते हो या तो घटा सकते हो। So in the loops we are generally using, in loops which variable, what are the variable you are using in the loop, no loop controlling, that variable is called as a counter variable. So the counter variable means you can count the variable, means counting next value or previous value, so increment or decrement, next iteration. So friends, in generally increment word will starting with I, so due to that reason we are using I as an increment variable. समटाइम्स क्या है, अधिकतर लोग आई को ही काम में लेता है मेरे लूप के अंदर, बिकॉज इंक्रीमेंट वैल्यू आई। फ्रेंड्स, अभी आज का क्लास में हम लूप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टुडे इन आवर क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द VBA लूपिंग्स। लूप स्टेटमेंट अलाउस अस टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स। लूप स्टेटमेंट से हम क्या कर सकते हैं, एक या तो एक से अधिक स्टेटमेंट्स को एक से अधिक बार चलाने के लिए, एक कोडिंग के अंदर, एक प्रोग्रामिंग के अंदर, हर एवरी लूप स्टेटमेंट मस्ट हैव द फॉलोइंग 3 पैरामीटर्स। प्रति लूप स्टेटमेंट का अंदर ये 3 पैरामीटर्स को हम काम में लेते हैं। फर्स्ट वन इज द इनिशियल वैल्यू, पहली वाली क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू, तो वो है इनिशियल वैल्यू कह लेते हैं, ये लूप कहाँ से शुरू करना है। दूसरी कंडीशन, ये नियम है, क्राइटेरिया है, रूल है, कब तक ये लूप चलाना है। सपोज इफ यू आर गिवन ए रॉन्ग कंडीशन, देन द लूप विल बी ए कंटिन्यूअस रिकर्शन, मींस कंटिन्यूअसली लूप चलता रहेगा, बाहर नहीं आ सकता। Sometimes it will hang. So friends, so the condition will indicate up to what, means number of times you can run. ये कंडीशन ये बताते हैं आप अपना लूप को कितना बार चलाना चाहते हो या कब तक चलाना चाहते हो। तीसरी ऑप्शन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, एक बार लूप को चलाने के बाद उस कंट्रोलर वेरिएबल को, काउंटर वेरिएबल को आप बढ़ाना चाहते हो या तो घटाना चाहते हो नेक्स्ट इटरेशन के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए।
तो ये तीनों चीज ध्यान रखें फ्रेंड्स। दिस इज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एक लूप। आप कृपया मेहरबानी से ये लूप का कंडीशन फंड समझने के लिए कोशिश कीजिए, अलग अलग लूप को आसान तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। So every loop having these three parameters and this structure starting value, when the controller will enter into the loop statement ना, then it will check the condition. Initial value तो हमने बताया, मान के चलेंगे, so condition check करेगा. If the condition is true, then it will enter into the conditional code, means block of statements. Then it will implement the all the statements what are the mentioned here, statement 1 2 3 up to n statements. Then after that एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद अभी हमने डिस्कस किया इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट, काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेगा या तो डिक्रीमेंट करेगा। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बाद कंट्रोलर विल बी पास ऑन टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप एंड इट विल चेक द कंडीशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू and enter into the conditional code and execute the block. After that again increment or decrement, then controller will be passed on to the beginning of the loop and it can check the condition. If condition is true, then it will enter into here. It will repeat like this number of times. After some time, if the condition is false, then what happened? It will skip this entire loop block, take away and stop the loop or exit from the loop. And after that loop का बाद भी कुछ स्टेटमेंट है तो ले सकते। अब मैं हिंदी में समझाना चाहता हूँ सेम फंडा को, प्लीज कृपया ध्यान दीजिए। प्रति लूप इंप्लीमेंट करते समय पर क्या है, सपोज कंट्रोलर लूप का आरंभ में स्टार्टिंग लाइन पर आ गए मान के चलते हैं, तो स्टार्टिंग वैल्यू बताया हमने, आरंभ वैल्यू इतना तो मान के चलेंगे। फिर बाद में कंडीशन चेक करेंगे, जब भी कंट्रोलर लूप स्टेटमेंट के अंदर प्रवेश करेंगे स्टार्टिंग वैल्यू का साथ दिया गया नियम कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन सही है गलत है, कंडीशन सही है ट्रू है सत्य है, तो कंडीशन सही होने के बाद क्या करेगा, लूप का अंदर प्रवेश करेगा। जितने भी स्टेटमेंट सामने लिखा है लाइन बाय लाइन एक एक इंप्लीमेंट करने के बाद फिर आखिर में इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट करने के बाद करेगा। फिर तुरंत कंट्रोलर फिर स्टार्टिंग या तो आरंभ लूप का स्टार्टिंग पोजीशन पर चले जाएंगे। फिर अगेन कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही है तो फिर लूप के अंदर प्रवेश करके रिपीट करेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इस तरह चलता रहेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद कंडीशन गलत हो गया है, तो गलत होने के बाद फिर लूप के अंदर प्रवेश ना करके उस पर्टिकुलर लूप का एंडिंग स्टेटमेंट लिखेगा। फिर एंडिंग स्टेटमेंट कहाँ पर लाइन बाय लाइन पढ़ के फिर एंड स्टेटमेंट का आगे जाके मतलब यानी लूप से बाहर आ जाएगा, लूप एग्जीक्यूशन करना बंद करेगा। स्टॉप द लूप एग्जीक्यूशन और एग्जिट द लूप। कंडीशन फेल हो तो क्या करेगा, लूप का एग्जीक्यूशन बंद करेगा, या आप ये मान सकते लूप से बाहर आ जाए। फिर लूप से बाहर आने के बाद कहाँ चल जाते हैं सर, एंड ऑफ द स्टेटमेंट। उस पर्टिकुलर लूप का कहा हमने समाप्त किया है, अंतिम स्टेटमेंट। उस अंतिम स्टेटमेंट के बाद अंतिम स्टेटमेंट का आगे जाके फिर जो भी स्टेटमेंट हमने लिखा है उसको इंप्लीमेंट करेगा, रन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक यू पीपल सर अंडरस्टैंड माय कॉन्सेप्ट। मैं आशा रखता हूँ आप लोगों का समझ में आ रहा होगा। हाँ, ये लूपिंग नाउ वी आर रेडी टू डिस्कस मींस implement this looping through coding. Friends, in VBA there are three types of loops are there. So for the following loop statements are used in the VBA coding: for loop, while loop, then do while, do until. These are the loops are available in VBA: for loop, while loop, do while, then do until. So friends, here for loop is used to general purpose. For loop is one of the powerful and easiest way. It is very useful and easy to understand. For loop हम आसान से समझ सकते हैं, अधिकतर लोग for loop को भी काम लेते हैं। So आज का क्लास में हम for loop को थोड़ा implement करेंगे। So friends, here for the loop, this is the keyword for the starting value, counter variable का starting value, TO2 ending value। कहाँ से कहाँ तक करना है, बस इतना simple, very easy। For starting value to ending value, VBA statement 1 2 3 4 up to n statement, the next counter variable, बस ये है फंडा। एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग वैल्यू विल चेक विद द एंडिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू अंतिम वैल्यू से चेक करेगा। देन चेक करने के बाद क्या ऐसे क्या चेक करेगा, वेदर द स्टार्टिंग वैल्यू अंतिम वैल्यू से कम है या बराबर, ये चेक करता है। इज लेस देन और इज इक्वल टू एंड वैल्यू। If the given starting value is less than or equal to ending value, then it will condition is true. अगर जो दिया गया आरंभ वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू, अंतिम वैल्यू, आखिरी वैल्यू से छोटा है या बराबर है, तब ये कंडीशन सही माना जाता है। एक बार कंडीशन सही हो गया तो फिर कंट्रोलर
फॉर लूप के अंदर प्रवेश करेगा। फॉर लूप के अंदर प्रवेश करने के बाद लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके फिर काउंटर वेरिएबल नेक्स्ट पर आने के बाद नेक्स्ट आई वैल्यू सपोज 1 है तो 2 करेगा, फिर बिगिनिंग ऑफ द लूप अगेन इट विल चेक द कंडीशन। इस तरह बार बार करता रहता है। कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर नेक्स्ट का आ गया। Controller enter into the for loop block and execute the given statements. Counter variable increment by one step next value. Then it goes to the beginning of the for loop and check the given condition. If the condition is true or false, then repeat the loop. Otherwise, means condition is false. If the condition is false, terminate from the for loop. Controller goes to the end of the next. So this is the procedure to implement this for loop in our VBA coding. So friends, we have a little bit time. So now we want to do some experiments in Visual Basic. We have a little bit 10 minutes time. I want to check them. Please repeat the opt. Okay, friends, please don't make unnecessary charting. I want to give my lecture with the easiest manner. मैं मतलब स्टूडेंट्स को आसान तरीके से समझने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं इतना बड़ा बड़ा एग्जांपल्स तो नहीं बता रहा हूँ। प्लीज आप लोगों अननेसेसरी चार्टिंग्स को कृपया मेहरबानी से बंद करिए। फिर हम एक सिंपल कोडिंग देख के 5-10 मिनट में फिर समाप्त करें। అక్కడి నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ఫిలిప్ రానా? Friends, we want to implement the for loop simple. Okay, you want to print the n natural number. To print n natural numbers. First 10 numbers. 1 to 10 numbers. Look at here. Developer, Visual, sorry, not Visual Basic. Again Excel. Developer. Then inside menu, activate control. Some button is there. Double click. Then caption. For loop in bracket 1 to 10 numbers को हम प्रिंट कर रहे हैं। देख सकते हैं मैंने चेंज करने के बाद ऐसे आएगा। इसको बढ़ा सकते हैं। मेरे कहने मतलब क्या, what is the aim? If you want to click on this button, then it will implement the result. So we are ready to write the coding. We will enter into the VB editor. Then we want to implement the for loop concept. नंबर्स कहाँ प्रिंट करना चाहते हैं हम? सपोज मान लीजिए बीच में C से, तो C3 पर 1, 4 like 4 for 2 like that. So here, तो we need one counter variable. So I as integer. अभी n वैल्यू को हम रीड नहीं कर रहे हैं कीबोर्ड से, अप टू 10 डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं। Name I as an integer. Sorry. Then for I is equal to 1 to 10. Then after that, what we want directly, we want to print the values in Excel sheet. Where Excel sheet के अंदर कहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं हम? C3 पर, तो प्रिंट करना है। So friends here, in loops we are using the cells concept in place of range. Cells we will deeply discuss in the next class. Cells, row, comma, column. तो अभी हम Excel में suppose first we want to display I as a row, then 3 means column. First column A 1, second column B 2, third column C 3. Like we are using the column numbers. 1 to 3 row number is fixed. Value is equal to I. Then next next I. Simply next. Before using that, C1 के ऊपर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं इसको थोड़ा बहुत साइड पर रख रहा हूँ समझने के लिए, क्योंकि I want to use I as my row number 1 2 3 4. I counter variable 1 2 3 4. So मेरा I value 1, counter variable 1, row is 1. So due to that reason, I'm using my counter variable in my loop as row number also. रो में भी ही रो नंबर में भी मैं काम में लेना चाहता हूँ, इसलिए उसको मैंने साइड पर अलग कराया। अब हम रन करके देखते हैं।
already. You can change the design. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So how it will be implemented? Again, we will discuss here. Dim I as integer. I a counter variable को हमने integer मान लिया. For I is equal to 1 to 10. For syntax में मैंने बताया for starting value to ending value. So starting value मेरा counter variable 1 से लेकर 10 तक करने के लिए बता. Cells I means 1, 3 means A, B, C, third column. So 1, 3 means first row, C column, dot value is equal to I. I में क्या चल रहा है? 1 चल रहा है. फिर next I means जब print होने के बाद पहली बार I value 1 है, तो next time क्या next value 2 हो जाएगा, plus 1. So row through 2 हो गया, I value 2, 2 to 10, 2 below 10, condition is true, it will implement like this. अगर कम values के लिए अगर आपको मैं समझाना है तो first time you please look at here, I is equal to 1. सिर्फ 2 या तो 3 नंबर्स के लिए, 4 के लिए डिस्कस करेंगे, we have little bit time. So इसका मतलब क्या होगा? 1 is less than or is equal to 4. सिर्फ 4 तक हम चलाना चाहते हैं. So that means ये वैल्यू 1 और 1 से मतलब 4 का अंदर ही है, तो 1 4 का अंदर तो है, कंडीशन ट्रू हो गया. नेक्स्ट टाइम मींस I is equal to I plus 1. जब नेक्स्ट आ गया तो क्या करेगा ये? I is equal to I plus 1 इनडायरेक्टली. सो I वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास क्या है? फर्स्ट I वैल्यू 1, 1 plus 1 क्या होगा? 2. सो अगली बार नेक्स्ट इटरेशन में I वैल्यू 2 होगा. तो ये 2 आ गया तो फिर अगेन 2 is लेस देन और 4, यही तो चेक करेगा बार बार, लेस देन इज इक्वल टू 4. सो 2 है, 4 का अंदर तो है, कंडीशन ट्रू, 2 को प्रिंट करेगा. फिर 2 plus 1, अगली बार क्या? I is equal to 2 plus नेक्स्ट वैल्यू 3. सो 3 होने के बाद क्या करेगा? चलिए आपको पता होने के लिए इसको थोड़ा नीचे स्किप कर. देखिए नेक्स्ट इक्वेशन में नेक्स्ट वैल्यू आते समय पर 2 plus 1 दैट इज इक्वल टू 3. I वैल्यू क्या हुआ इस बार? 3 हो गया. तो 3 मींस अगेन 3 is less than or is equal to 4. इसका मतलब I वैल्यू 3 to 4 विद इन द रेंज, कंडीशन ट्रू माना जाता है. लूप रिपीट करेगा, मींस 3 को प्रिंट कर देगा ये. फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा? I वैल्यू I is equal to ऑलरेडी 3 plus 1, दैट मींस अब इस बार क्या हुआ? I is equal to 4 हो गया है. सो अगेन इसका मतलब क्या है? I is less I 4 होने के बाद सॉरी ये कंडीशन चेक करता है. क्या चेक करेगा? 4 is less than or is equal to 4. Sorry, 3 less than is equal. So 4 to 4 means so 4 वैल्यू 4 से बराबर है, कंडीशन ट्रू माना जाता है. हर संदर्भ में ये ट्रू है. अगर 4 तक देखेंगे तो अभी टिक रन करके, अगर मान लीजिए I वैल्यू 5, नेक्स्ट टाइम व्हाट हैपेंड? I automatically incremented, sorry, I value incremented na. So then what happened? I is equal to 4 plus 1, that means I is equal to 5. Next value here I is equal to 5, that means 5 is less than or is equal to 4. ये बता रहा है 5 4 से कम है या तो बराबर है. 5 4 तो ये आउट ऑफ बाउंड्री मींस सीमा से बाहर गया. 4 तक करना था, 5 हो गया, तो 5 होने के कारण से ये फॉल्स है. फॉल्स है तो लूप से बाहर है. अब इसको हम कोडिंग में चेक करते हैं. रिजल्ट मैंने हटा दिया, कंफ्यूज मत होना, डिलीट कर दीजिए मेहरबानी से. फिर इसमें गया तो 4 है तो 4 तक कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है वो चीज बताना चाहता हूँ. ठीक, सेव में गया, रन कर रहा हूं मैं इधर एडिट मोड में. देखिए फर्स्ट I इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू 1 होने के कारण से 1 से 4 कंडीशन ट्रू. फिर नीचे सेल्स का अंदर हम प्रिंट करने के लिए लिखा, प्रिंट किया इन्होंने. फिर नेक्स्ट I 2 हो गया, 2 to 4 कंडीशन ट्रू, फिर 2 को प्रिंट किया इन्होंने. फिर नेक्स्ट आने के बाद I 3 हो गया, 2 plus 1, तो 3 मींस 4 से कम है तो कंडीशन ट्रू. और ऑप्शन है ना ये, इन बिटवीन और ऑपरेशन इज देयर, लेस देन और इक्वल टू. Or operation means logical or operation when it will be true in